थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप में से कईयों ने ऐसे खूबसूरत विचार या तो सुने या फिर पढ़े होंगे। फेसबुक तो करते ही होंगे आप लोग, तो फेसबुक में भी शेयर किया होगा। सच कोट्स बाय स्वामी विवेकानंद रियली they inspire us। अब क्या कहूं एक्सेप्ट नमस्कार। आपका दोस्त एंड होस्ट जयंत कृपलानी फिर से हाजिर है ऑन दिस मोस्ट यूनिक शो ऑन इंडियन टेलीविजन, विवेकानंद आंसर्स। और आज हमारे साथ हैं रिवर्ड स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन वडोदरा। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर। Thank you so much for being with us. Swami Vivekananda was a born leader, a true leader for the entire human race, and he was writing this letter to his favorite disciple, Sister Nivedita. Nivedita अर्थात समर्पित। जरा सोचिए दोस्तों, एक आयरिश मूल की नारी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल स्वामी जी के व्यक्तित्व और आदर्शों से प्रभावित होकर भारतवर्ष आती है। ये सपना लेकर कि वो भारतीय नारी जाति को शिक्षा देगी, उनकी आगे बढ़ने में मदद करेगी, और फिर इन्होंने अपना सारा जीवन हमारे देश के पिछड़ों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। सिस्टर निवेदिता को लिखे गए इस खत से मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि इट्स ऑफन सेड दैट देयर इज अ ह्यूज लीडरशिप क्राइसिस ऑल अराउंड अस इन मोर स्फीयर्स देन वन। हमें आज अच्छे लीडर्स नहीं मिल रहे हैं। Now I would like to go straight away to the future leaders of the country जो हमारे साथ अभी हैं। क्या दोस्तों, आपका क्या ख्याल है on leadership? A leader's actions, his deeds speak louder than his words, I do believe. We take examples from a leader's works, not from his words. So could you give some examples? Like Swami Vivekananda, you have already said, Himself, sir. yes. Exactly. Okay. Any other questions? No. Swamiji, would you like to take this? Well, Swami Vivekananda, as he has told, was a great leader. Normally, when a leader dies, his obituary note is the last pressed newspaper note. Whereas, what do we find? Swami Vivekananda left his body on 4 July 1902, and today we are celebrating 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. Not only that, whatever ideas he has given on leadership, he has practiced it, and that is why he is successful. Why don't we talk about these points that he has mentioned? Yeah. Now, many points he has talked about on leadership, but I will give you one simple formula that he has given out of all those many points. One main point. And he used to say, सिरदार वही सरदार। हाँ। सरदार कौन बन सकता है, नेता कौन बन सकता है? जो सिर दे सकता है। सिर देने का मतलब केवल सेक्रीफाइस नहीं करना है, युद्ध में सिर को झुकाना है। One who can sacrifice his ego, his selfishness, he alone can become a leader. And a person who can actually serve. Yeah, and अभी आजकल जो सारे विश्व में एक लीडरशिप जो बहुत ज़्यादा फेमस है, not only in corporate sector all over the world, not only in America but also all over the world, वो है रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने शुरू किया था 76 में servant leadership, which is now very popular. But you will be surprised to know 1976 में जो servant leadership की बात रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने की अमेरिका में, आज से 150 साल पहले स्वामी जी ने यही servant leadership की बात कही थी। Yes, I know. I think the tenets of leadership don't really change over the centuries. It is how they are adapted, how they are adopted to suit the current needs. Not like that. Not like that. अभी तक ये हमारा लीडरशिप का फॉर्मूला यही था कि लीडर इज वन हु जस्ट विथ हायर एंड फायर मेथड he is a boss, he is bossing over others and he is showing his power and position. Now in this modern age this is not going to do. Why it is going to do? Because abhi it is a knowledge society. Knowledge society mein those who are being served are also knowledgeable. So how can you control those people who are more knowledgeable than you? No, I beg to differ at one level over here. I am afraid our leaders still, at least हमारे देश में जो हैं, in the last number of years, हमारे leaders, they behave like leaders. They don't behave like our servants. Even though हम लोग उन्हें elect करते हैं, हम लोग power में डालते हैं, ये इसके लिए कि इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश को lead करें, but वो end up bossing us and bullying us. This is exactly what I am telling. तो
आज ये जो सर्वेंट लीडरशिप की बात सब जगह चल रही है, उसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और व्हाई ही वाज सक्सेसफुल, बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड हिमसेल्फ, कि लीडिंग बाय एग्जांपल, नॉट बाय प्रिसेप्ट, लीडिंग बाय हिज ओन एग्जांपल। और उन्होंने जो आपने जो निवेदिता की बात पहले कही थी, उस लेटर में स्वामी जी ने लिखा था, सेक्रीफाइस 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 इन द पास्ट हैज बीन द लॉ, इट विल बी अ फॉर एजेस टू कम। The earth's best and bravest will have to sacrifice themselves for the good of humanity. But आजकल, why does one feel that there's a vacuum? There seems to be a total lack of the genuine leadership. कहाँ गए हमारे गांधी, कहाँ गए हमारे तिलक? बात यही है कि अभी हमारा फोकस पूरा चेंज हो गया ना, हमारे लीडर्स का फोकस चेंज हो गया। सो दिस इज व्हाई आवर लीडर्स आर नॉट परफॉर्मिंग। मैंने कहा ना कि स्वामी विवेकानंद आज हम उनको क्यों याद करते हैं, क्योंकि ही प्रैक्टिस सर्वेंट लीडरशिप। आप समझ जाइए, अमेरिका गए थे, कितनी बड़ी मुश्किल हुई, इनको डिफिकल्टीज हुई, करके उन्होंने थोड़ा सा पैसा जो इकट्ठा किया, अमेरिका से वापस आए, सब पैसा उन्होंने अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद को दे दिया। उन्होंने संस्था शुरू की, उसका नाम क्या रखा, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद मिशन नहीं रखा, अपने गुरु के नाम पर रखा। और सबसे पहले प्रेसिडेंट वो खुद नहीं बने, पावर पोजीशन उन्होंने नहीं लिया, स्वामी ब्रह्मानंद जी को रामकृष्ण मठ का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया। सो ही वाज लास्ट इन गेटिंग नेम एंड फेम एंड पावर पोजीशन, एंड ही वाज फर्स्ट इन सैक्रिफाइस। ये है सर्वेंट लीडरशिप। हाँ, ठीक है। मैं सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूं कि हाँ, हम लीडरशिप की डेफिनेशन समझते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं हमें सर्व करने के लिए आए हैं यहाँ पर, लेकिन ये दुनिया भर में ये नहीं हो रहा है। हमारे सिर्फ इस देश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ कि हमारे जो लीडर्स हैं दुनिया भर में, कुछ कमी महसूस होती है उनमें। वो क्यों हो रहा है ऐसे? वही मैंने कहा कि जब तक वो डेडिकेशन, समर्पित बुद्धि नहीं आएगी और वो सिरदार, वही सरदार, सिर को सेक्रीफाइस करने की भावना है, तब तक वो हमको वो लीडरशिप का वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, 13 फरवरी 2002 को पोरबंदर में, आप लोगों को मालूम होगा, भूकंप हुआ था, तो हम लोगों ने स्कूल बनाई थी, रामकृष्ण मिशन ने 81 स्कूलें बनाई थी, गवर्नमेंट स्कूल हमने दे दी थी। उसमें से एक स्कूल का उद्घाटन करने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे, उस समय राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो उन्होंने उस समय जो पोरबंदर में स्पीच दिया 13 फरवरी 2002 को, तो विद्यार्थी ने पूछा व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि आपके प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली आई डू नॉट लीक आउट दिस सीक्रेट, बट दिस इज द राइट प्लेस टू लीक आउट दिस सीक्रेट। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जब मॉनिटर था, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो हमारे हेडमास्टर ने बुलाया और कहा कि भाई आज सबको बुलाओ और रात को रनिंग कमेंट्री सुनना पड़ेगा, 15 अगस्त 1947 भारत स्वाधीन होगा। तो हमने रनिंग कमेंट्री सुनी। दूसरे दिन उन्होंने कहा, डॉक्टर कलाम ने कहा, दूसरे दिन समाचार पत्र में हमने 2 फोटो देखे। पहला फोटो देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का, वह तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं लाल किले में, बहुत आनंद हुआ। फिर डॉक्टर कलाम ने कहा, बाय द साइड वाज द सेकंड फोटोग्राफ, एंड दैट सेकंड फोटोग्राफ was my primary education, was my secondary education, was my college education, and was my life education. And what was that photograph? That photograph was showing when the whole nation was celebrating the independence of India, the one person who did maximum sacrifice for that independence was not celebrating. He was walking on barefooted on the streets of Kolkata, walking wiping the tears of the people afflicted by no-account riots. Mahatma Gandhi. So just hold that thought. You wanted to ask a question. What was that? Yes, sir. I just wanted to ask that, as you said, that a leader leads by examples, and we have plenty of leaders around us, so-called leaders around us. What should we actually look for in an ideal leader so that we don't get swayed away? What should we find in them? Yeah. स्वामी जी, आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन I think आपने जो शुरुआत की थी इस सेक्शन की, जब आप कह रहे थे कि our ex-president saw the photograph of Gandhi walking bare feet on the streets. I think that would be a good place to start to answer that is this. why Swamiji, that is Dr. Kalam said कि उसने मेरे जीवन में बदलाव ला दिया, and मैं समझ सका what is the nobility of leadership. You see, these are two things. Power position लेते समय सबसे आगे आना और सेक्रीफाइस करते समय सबसे पीछे जाना, ये है मॉडर्न लीडर्स। There may be exception, but most of them. But महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ये कैसे थे? सेक्रीफाइस करते समय सबसे आगे और पावर पोजीशन समय लास्ट। गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री नहीं बने, बनना चाह सकते, बन सकते थे। स्वामी विवेकानंद खुद प्रेसिडेंट नहीं बने रामकृष्ण मठ मिशन के,
और इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद सर्वेंट लीडरशिप का उन्होंने फॉलो किया अपने जीवन में, हम क्या देखते हैं कि उनके जीवन काल में 1902 में जब उनका शरीर गया तब मात्र 5 सेंटर थे रामकृष्ण मठ मिशन के। नाउ देयर आर 178 ब्रांच सेंटर्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 1000 नॉन एफिलिएटेड सेंटर्स। और कितनी सारी एक्टिविटी बढ़ गई। लीडर के जाने के बाद एक्टिविटी बढ़ना, व्हाट डज इट शो? दैट शोज द रियल लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द लीडर, कि उनके जाने के बाद भी वो ग्रो कर रही है दैट संस्था। So they followed those 4 principles. So because of those 4 principles, A, absence of jealousy, ego and selfishness, that is number 1. B is your behavior pattern, how humble you are, whether with what type of ego you talk to others or you behave with others. C, character. Most important thing in a leader is character. Character is lost, everything is lost. And 4th is डेडिकेशन, जिसकी बात अभी निवेदिता की बात हुई, डेडिकेशन, समर्पितता। ये 4 चीजें रहेगी, दैट लीडर विल बी सक्सेसफुल लीडर एंड दैट लीडर विल बी एन एग्जांपल फॉर अदर्स। आप अभी कह रहे थे कि आजकल के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो जब आपका वोट लेना चाहते हैं तो आके खड़े हो जाते हैं सामने, और जब लीडर बन जाते हैं तो छुप जाते हैं पीछे, दे नॉट रियली लीडिंग। वेल, मैं देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स हम लोग दूर रहते हैं, मैं हम पॉलिटिक्स की मैं बात वोट नहीं कर वगैरह रहे। की बात, मैं यही कहूंगा लीडर्स ऑफ एनी डिपार्टमेंट, इट मे बी लीडर इन योर क्लासरूम, दैट इज अ मॉनिटर, इट मे बी a leader of a religious organization, it may be leader of a corporate sector, it may be leader or a captain of a cricket team or on a sports team, और यहाँ फौजी भाई भी leader हो of any सकते हैं। type, हाँ। leader of any type, all the leaders, what examples I am giving you, जो सर्वेंट लीडरशिप की जो मैंने बताया था, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ लीडरशिप्स। तब उसमें आप, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू टेल, आई विल नॉट से, यू से वेयर द लीडरशिप इज फेलिंग। इट इज बिकॉज वेयर दिस 4 प्रिंसिपल्स आर नॉट देयर, you will find they are not be able to perform, or they are not able to become the living examples for others. Leading by example is not happening. स्वामी जी, आपने जो 4 क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप दी, उसमें आपने ह्यूमिलिटी मेंशन की। ह्यूमिलिटी मैंने कहा कि जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें ह्यूमिलिटी भी रहेगी, उसका जो बिहेवियर पैटर्न होगा उसमें ह्यूमिलिटी रहेगी, साथ साथ में वो कॉर्डियलिटी रहेगी। ये सब बिहेवियर पैटर्न में आ जाता है, बी में आ जाता है, और कैरेक्टर में सब आ जाता है, सी में। We've talked about Swami Vivekananda, of course, because it is his 150th birth anniversary. We've talked about Kalam Sahab, and let's talk a little more about Mahatma Gandhi. You talked about what he saw, this photograph during the Noah Khali Raj, his style of leadership. So, गांधी जी ने जो किया कि उन्होंने देश के लिए बहुत सारा किया, परंतु जब पावर पोजीशन की बात आई तो उन्होंने पावर पोजीशन कुछ नहीं लिया। This is unlike the leaders who want to go more for chair and more for power and position. Now, Gandhi ji was a very special type of person, where he was also a political leader and also more or less a social leader. Not only political leader, but he was a leader of the whole society. In Swami Vivekananda's, in his childhood, did one sense any of these leadership qualities? Yes, right from childhood, स्वामी जी के भीतर में लीडरशिप क्वालिटी जो थी वो तो बचपन से ही मिलती थी। जब वो खेल खेलते थे तो वो राजा बनते थे, बाकी सब छोटे छोटे बच्चे उनके जो सहपाठी थे वो नीचे बैठते थे, वो लीड करते थे। ये तो उनमें इनबॉर्न क्वालिटी थी। इसीलिए स्वामी जी ने कहा भी है कभी कभी कि लीडर्स आर नॉट मेड, लीडर्स आर बॉर्न। लीडर्स आर बॉर्न, उनके भीतर में वो क्वालिटी इनहेरेंट रहती है। परंतु कभी कभी ऐसा भी रहता है कि हमको लगता है कि आई एम नॉट ए बॉर्न लीडर, हु नोज, देयर मे बी इनबॉर्न क्वालिटी व्हिच इज नॉट येट टेकन आउट। सो लेट अस नॉट बॉदर अबाउट दैट वेदर वी आर बॉर्न लीडर्स और नॉट, बट इफ वी रियली वांट टू लीड अ टीम, if you want to really lead a company, if you want to really lead the nation, whatever it is, जहाँ पर भी हम अपने एक छोटे से ग्रुप को भी लीड करना चाहते हैं तो लीडर में ये क्वालिटीज यदि 4 रहेंगी। मैंने तो अपने अनुसार बनाया, स्वामी जी ने नहीं कहा, पर स्वामी जी ने तो ये बार बार कहा था। उसमें उन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज उन्होंने जो कही थी उसमें कि मैंने उसका जिस्ट बनाया, पर मेन उनका यही कहना था कि लीडर हैज टू इंस्पायर अदर्स बाय हिज ओन एग्जाम्पल एंड नॉट ओनली बाय प्रीचिंग। Swamiji, in life, people have certain leadership qualities. उनके हैं, they, as you say, some people are born, they're born with leadership qualities, and some acquire them along the way. But some also get fairly stale along the way.
I am failing as a leader because I have now become stale. How do I re-energize myself? एक पॉइंट यदि मैं बता दूं, सेल्फिशनेस इज द थिंग दैट किल्स योर लीडरशिप क्वालिटी. Selfishness one is word. a thing that One kills word, your remember. leadership quality. जहां सेल्फिशनेस आई तो यू विल नो लॉन्गर बी ए लीडर. जहां अनसेल्फिशनेस आएगी, अपने आप लीडरशिप में आपको you will get the success. I'm going to change now the focus from you to our young friends over here. What do you look for in a good leader? जैसा कि महाराज जी ने कहा, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, पहले हमारे बारे में सोचना चाहिए लीडर्स को कि क्योंकि वो हमें लीड कर रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे जाएंगे तो सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए, ताकि सही रास्ते पे हम लोग चल सकें. हाँ, कहिए. Sir, true leader, I find someone with an intellect who is far-sightedness, who can understand or sense a problem even before I understand. See him true. as a leader. Very true. He is a visionary and he has got intuitive capability also. And that intuitive capability comes with meditation. That is why Swami Vivekananda was such a great leader, because he was an adept in meditation. बचपन में ध्यान के खेल किया करते थे, इतना ध्यान में मग्न हो गए बचपन में कि एक सांप आया, उनको पता नहीं पड़ा. He was an adept in meditation. With that meditation, he could get that intuitive power. आज भारत की जितना से स्वामी जी ने दे दिया. क्यों? इतने वर्ष पहले, क्योंकि उन्होंने कन्याकुमारी के शिलाखंड पर बैठ करके 3 दिन 3 रात तक जो ध्यान किया, वो इंट्यूटिव पावर उनका था. उसके कारण वो विजनरी थे. उनको पता पड़ा कि ऐसे प्रॉब्लम आएंगे और इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है. Marvelous. You are So right. this kind of leadership, which is very rare, you know, एक नहीं दिखती है इस तरह की leadership. But अगर एक leader inspirational हो और कुछ बरसों के बाद selfishness कारण हो या ego कारण हो, इनकी जो leadership qualities है वो weaken हो जाती है. So would this lead to some kind of insubordination on the part of the people who is leading? Number one, first of all, let us see that we cannot become ideal leaders. Okay, leaders are born. This is one category. Swami Vivekananda वगैरह हो गए. परंतु what we can do is कि some of the qualities that they have told us to imbibe, if we can try, we may not be as effective or as inspirational leader as them, but something will come, and that will be good enough for our daily this one. Even that also will be a benefit. So let us not, let us not be defeatist. No, we cannot do that. Let us go to the extent possible. जहाँ तक हो सके हम उसका पालन यदि करते हैं तो कुछ न कुछ हद तक तो हम जा सकेंगे, और जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ उसमें उसका लाभ मिल सकेगा. एक आप concluding line दीजिए that will inspire them to concluding line मैं फिर से कहूंगा, सिरदार वही, सिरदार वही, सिरदार वही. थैंक यू. तो दोस्तों ये क्लियर है कि लीडर बनने के लिए पहले यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन योर ओन फील्ड, और हर एक लीडर को पहले खुद को साबित करना पड़ा. They have proved that they can go further than general people. They can reach a much higher level. Only then can society approve of them as a leader. And as Swamiji just said, the person who leads the best is the person who सिद्धार हो या. That's right. महाराज जी, सभी फ्रीडम फाइटर्स तो स्वामी जी के नेतृत्व से प्रभावित थे. स्वामी जी, हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले, they all took some inspiration from Swami Vivekananda ji. What was that inspiration? हाँ, हमारे जितने क्रांतिकारी हुए या देशभक्त हुए, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद. हमारे जितने लीडर्स हुए, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1902 में शरीर छोड़ा. उसके बाद 1905 में जब बंग आंदोलन हुआ, वहाँ से हमारी नई जागृति फिर से आई. 1857 में तो दबा दी गई थी, पर ये जो स्वाधीनता आंदोलन का जो बीज है वो 1905 में बंगाल में हुआ. और ये सबसे अधिक बंगाल में ही थे देश, ये जो हमारे क्रांतिकारी. और ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहा कि स्वामी विवेकानंद की किताबों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ये क्रांतिकारियों को संभाल नहीं पाएंगे. क्योंकि हम उनके घर जाते हैं तो कभी बॉम्ब मिलता, कभी नहीं मिलता, पर 2 बॉम्ब सभी जगह मिलते हैं. एक भगवत गीता की पुस्तक और एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक. और पुस्तक का नाम है पत्रावली, बंगला में. तो पत्रावली बंगला पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने का यह कार्यक्रम भी
वो चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उन्होंने रिकमेंड किया था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। और हमने जितने देशभक्त की आप पढ़ी है उनकी बातें, सभी ने अपने इंस्पिरेशन सोर्स में स्वामी विवेकानंद को बताया। महात्मा गांधी जब आए थे बेलूर मठ, वहाँ पर 1921 में 30 जनवरी को, तब सबने कहा गांधी जी भाषण दी। गांधी जी कहा मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि लेने आया हूँ। पर मैं युवकों को एक ही बात कहूँगा, जब यहाँ पर आए हो तो यहाँ से खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने साथ लेकर जाना। स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद को किताबों को पढ़ा है, उनको पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी 1000 गुना बढ़ गई। सो 1905 में ये एक्चुअली इंस्पिरेशनल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और 42 years later it seemed to have worked and we sent the British home. कितने सब देशभक्त, सभी लोग बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बोलते हैं कि मेरे इंस्पायरिंग सोर्स स्वामी विवेकानंद थे, और डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं कि हम अपने मित्रों को पत्र लिखते थे उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्र लिख देते थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की पत्रावली किताब तो देने से ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर पड़ती। Thank you so much, Swamiji. I believe from today you will all be devoted to bring out the leader that lives in your minds. भाई आज हमने शुरुआत कोटेशन से की थी, तो शो का अंत भी कोटेशन से ही करेंगे। Sirdar wahi? Absolutely correct. And with that thought, let's go home today. And you too can keep this thought in your minds. And while you do that, I shall say thank you so much to Swamiji for all your lovely inputs. And thank you all you beautiful people for being here, our future leaders. And I'll see you next week again in Vivekananda Answers.